Hello dear students, today I am going to continue chapter 4 of OCM, Organization of Commerce and Management, Standard 11, session number 2 of Communication, E-Commerce and Outsourcing. In last, that is in first session of the communication, we discussed that introductory part. Also, I gave the basic information about that introduction of communication, e-commerce and outsourcing. Then I started meaning and definition of communication and we discussed in detail. Now you have knowledge about that one. The communication is a one type of the two-way process. Verbal, non-verbal communication is there. Different things are included in that one. Okay, so you can say it will include, right, the different things. It includes the different types, or it includes the different type of the words when the communication is there. आपको words मालूम भी पड़ेगा, emotions, feelings, information, concept, right, different type of the instructions, knowledge, understanding, okay, some of the opinions, all type are included. Also we discussed that verbal and non-verbal. Under the verbal, you know that when words and sentences are there, orally, written, you can say. But in a non-verbal, right, some of the other information is there, that is called easily physical expressions, right, some of the signals, gestures, postures, facial and eye expressions, etc. So these are the different things. Also, music, singing, dance, sculpture, picture, drawing, maps, सम ऑफ द कैनन सैल्यूट सायरन ऑल दिस आर इंक्लूडेड. इसलिए फिर से बता रहा हूँ कि मुझे उसको आपके दिमाग में उतारना है. सो ये एक इन्फॉर्मेशन थी. नाउ लेट्स मूव टू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. यहाँ तक हमने ऊपर तक देखा था. लास्ट डेफिनेशन मैंने लिखी है, बताइए आपको. कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग आवर थॉट्स इनटू अदर्स माइंड. यहाँ तक हमने क्लास में भी और वीडियो में देखा. नाउ लेट्स मूव टू द प्रोसेस. अंडर दैट वन, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन क्या है? कई बार ये वर्ड आ गया कम्युनिकेशन को हमने जब समझा तब. तो इन्फॉर्मेशन मीन्स द आउटकम रिसीव्ड आफ्टर द प्रोसेसिंग द डेटा. यानी वॉट एवर डेटा यू कलेक्टेड in statistics, you have knowledge about that one, primary and secondary data. So whatever the data you collected, it must be processed, and after processing the data, the outcome is information. So जब भी आप कोई रो डेटा का यूज़ करते हो, बने बनाए डेटा का यूज़ करते हो, उसका आपने आफ्टर रिसीव जो डेटा किया उसके बाद उसको कहीं ना कहीं तरह उसमें चेंजेस लाए हो. Okay, after that changes, after that processing, right, whatever outcome is that is information. The information means outcome received after processing the data. For example, if we collect price of a thing, commodity in economical way from 5 different sources, then these prices are data. तो जो हमने प्राइस कलेक्ट किया है कोई चीज़ का 5 अलग अलग सोर्सेज से, तो वो प्राइजेस है. ये जो प्राइजेस 5 अलग अलग किए हमने, दैट इज कॉल्ड डेटा. बट द डिटेल्स लाइक मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस एटसेट्रा आर इन्फॉर्मेशन. सो आउटकम हमें तो क्या चाहिए? हमें तो प्राइस अकेले नहीं चाहिए, हमें ये जानना है कि वो प्राइस किस चीज़ की, कहाँ पर से ली है, क्यों ली है, कैसे है उसका प्राइस, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम प्राइस है, या ये सब कुछ. सो व्हेन इन्फॉर्मेशन इज देयर, दैट मीन्स इन आवर एग्जांपल व्हेन प्राइसेस आर देयर, टोटल प्राइसेस आर द डेटा, रॉ डेटा. उसमें से अब हम निकाल रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम. तो जो मिनिमम निकल रहा है, मैक्सिमम निकल रहा है, वो हमारा इन्फॉर्मेशन है, राइट. वो फिर उसमें ग्राम पे जाएगा कि ये इसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों है, तो वो इसका ग्राम ज़्यादा है, इसका ग्राम कम है, वॉट एवर, वो बात की बात है, वो इन्फॉर्मेशन है. लेकिन अभी के लिए याद रखो कि डिटेल्स जो हमारे पास आती है, मैक्सिमम, मिनिमम प्राइस, वो सब क्या है, वो इन्फॉर्मेशन है. ये आपके समझ में है बिकॉज स्टेटिस्टिक्स में ये ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट में खत्म हो चुका है. नाउ प्रोसेस. At this stage of communication, the steps of exchanging information are. तो these are the steps. ये फॉलो करने हैं. देखो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है, सो आप इसमें कोई और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं. यू कैन राइट आउट अनदर एग्जाम्पल अगर ये एग्जाम में आए तो. लेकिन ये एक सिंपल सा कन्वर्जेशन है बिटवीन टू पर्सन्स. तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ ही खत्म हो जाएगा. क्रिएशन ऑफ मैसेज. मैसेज क्रिएट करो. तो मैसेज इज फॉर्मुलेटेड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन. तो मैसेज इज फॉर्मुलेटेड, उसको हमें फॉर्मुलेट करना है, प्रोसेस के अंदर डालना है एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन के लिए. सो मैसेज में भी ओरल, रिटर्न, वर्बल, नॉन वर्बल एक्सेट्रा. हमने समझ दे दी है आपको, मैंने आपको सब कुछ बताया कि ये वर्बल, नॉन वर्बल क्या है, ओरल, रिटर्न क्या है. भाई कल एक क्वेश्चन भी अराइज हुआ था कि सर अगर संगीत है यानी म्यूज़िक है, तो म्यूज़िक को हम कौन से वे से लें.
आर्टिस्टिक वे है ना, वो आर्टिस्टिक वे वो ओरल में भी आता है, समझ लो, वो रिटर्न में भी आता है, वो नॉन वर्बल भी कहलाता है। इट डिपेंड्स, कई चीज़ें ऐसी होती है एक्सेप्शनल, उसमें से उसका हम समावेश कर सकते हैं। सो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि जनरली प्रोसेस में जो स्टेप्स है उसमें हम कैसे मैसेज पास आउट करते हैं, तो उसी किसी भी तरह होता है, ओरल, रिटन, वर्बल या नॉन वर्बल। सीधा एग्जांपल, फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा, एक बंदा है, एक आदमी है, एक इंसान है जिसको राजकोट से बड़ौदा जाता है आफ्टर 8 PM। सो फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा आफ्टर 8 PM, 8 बजे के बाद उसको राजकोट से वडोदरा जाना है। द स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस विल बी एज फॉलो। यहाँ देखो वर्ड यूज़ किया है इन्फॉर्मेशन, यहाँ डेटा नहीं है, हियर इट इज द इन्फॉर्मेशन। सो दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट जो मैं एग्जाम्पल को आपको बता रहा था। दैट इज द लेट्स मूव टू दैट वन। द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, हियर आर द 5 or 6 डिफरेंट स्टेप्स आर देयर। एक्सप्लेनेशन इसका क्या आता है, और लास्ट में उसका एक एग्जाम्पल है कि एट व्हाट टाइम आफ्टर 8 PM अ बस फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा विल बी अवेलेबल। 8 के बाद राजकोट से बड़ौदा की कोई बस है। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं, पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। एक मैसेज फॉर्मेशन होता है, शुरू होता है कि मैसेज इज क्रिएटेड इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। मैसेज कैन बी ओरल, रिटर्न, वर्बल और नॉन वर्बल। किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ये राजकोट वाला इंसान वो तैयार करता है, ओरली हो, रिटर्न हो, कुछ भी तरह, वर्बल, नॉन वर्बल, जो भी हो। उसके सामने उसका एग्जाम्पल आता है, तो वो क्वेश्चन पूछता है, लिखता है, एट व्हाट टाइम आफ्टर 8 PM अ बस फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा विल बी अवेलेबल। दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज फॉर्म। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन फॉर्म आउट किया है, हियर इज द क्वेश्चन, द फर्स्ट वन। नेक्स्ट वन, सिलेक्शन ऑफ मीडियम। कौन से माध्यम से आप ये क्वेश्चंस करना चाहते हो जो आपने तैयार किया है। सो स्टेप्स में क्या आता है, आफ्टर क्रिएटिंग द मैसेज, इन ऑर्डर टू सेंड द मैसेज वन नीड्स टू गो पर्सनली और सिलेक्ट एनी वन और मोर देन वन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल। तो अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो यू हैव टू विजिट द पर्टिकुलर प्लेस, देन आस्क द क्वेश्चन राइट एट द इंक्वायरी सेंटर, एट द इंक्वायरी एरिया। इफ़ यू डोंट वांट टू विजिट, वन नीड्स टू गो पर्सनली, अगर आपको नहीं जाना है, देन यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द और वन और मोर ऑफ द अवेलेबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। जितने भी कम्युनिकेशन के मोड्स हैं मीन्स इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो यू कैन यूटिलाइज द इंटरनेट, गूगल पर सर्च लगा दो, राइट, बड़ौदा थी, राजकोट से बड़ौदा कितने बजे का प्लेन के जो भी है, यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि बस स्टैंड है तो कितने बजे की बस है। तो अब हमें बस का लिखेंगे तो हमें प्राइवेट का, लग्जरी बस का भी आएगा। अगर आपको जाना है सिर्फ गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट रोड के यानी GSRTC, गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अंडर में जाना है, तो आप उसकी साइट खोलो, उसमें देख लो, सही है ना। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन अलग अलग है, ऐप होती है, तो ऐप का रेड बस है, रेड.बसिंग. कुछ करके है, तो उसकी ऐप आती है, वो खोल दो, उसमें मिल दो, वो उसमें आप लगा दो, क्या था इन्फॉर्मेशन। सो हियर हमें यहाँ क्या दिया है, टेलीफोन इज यूज एज द मीडियम ऑफ सेंडिंग मैसेज। तो यहाँ टेलीफोन यूज़ किया था, बहुत पुराना सिलेबस है इसलिए टेलीफोन दिया, बाकी हम तो व्हाट्सएप पे भी हम दे सकते हो। थर्ड वन, टू सेंड मैसेज। अब हमें मैसेज सेंड करना है, हियर सो हियर द मैसेज इज सेंट आफ्टर सिलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन मीडियम ऑफ मैसेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, एक मैसेज क्रिएट किया, उसके बाद मैं पर्सनली जा सकता, नहीं गया तो फिर मैंने मीडियम ऑफ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन यूज़ किया जो टेलीफोन है, राइट। देन आफ्टर यस, तो टू सेंड द मैसेज, पहले हमने देखा कि मैसेज हमें तैयार करना है, फॉर्मेशन करना है, रिटर्न, ओरल, वर्बल, नॉन वर्बल। देन आफ्टर वी विल सिलेक्ट द पर्टिकुलर मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन, दैट इज टेलीफोन। उसके बाद थर्ड आता है द मैसेज इज सेंट आफ्टर द सिलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। हमने जो पर्टिकुलर मोड डिसाइड किया था टेलीफोन, उससे हम मैसेज मीडियम के थ्रू भेजते हैं। सो व्हाट इज द पर्टिकुलर एग्जाम्पल अबाउट दिस वन, तो इट इज रिक्वायर दैट एट व्हाट टाइम आफ्टर 8 PM बस फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा विल बी अवेलेबल। जो हमने पहले क्वेश्चन पूछा कि किस टाइम पर 8 बजे के बाद बस होती है, देन आफ्टर वी डिसाइड द टेलीफोन। उसके बाद हम एक्जैक्टली पूछते हैं कि भाई एट व्हाट टाइम इट इज़ अवेलेबल। दैट क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं है।
क्वेश्चन में एक ही फ़र्क आता है कि हमें ये जानना है, हमें ये इंक्वायरी करनी है कि एग्जैक्टली कौन से टाइम पर है, 9 बजे है, 9:30 बजे, 10 बजे, वॉट एवर द टाइम पीरियड इज। फोर्थ वन है टू एक्सेप्ट द मैसेज को हमें एक्सेप्ट करना है, टू एक्सेप्ट द मैसेज। सो द सेंडर सेंड्स द मैसेज एंड रिसीवर एक्सेप्ट द मैसेज। तो जो बस वाला है यानी जिससे हमने इंक्वायरी की वो मैसेज सेंड करेगा, ये हमने ऑलरेडी आगे देख लिया। एंड द रिसीवर विल एक्सेप्ट द मैसेज, उसने एक्सेप्ट किया। नाउ व्हाट इज द पर्टिकुलर आउटपुट ऑफ दिस वन? यूजिंग द मीडियम ऑफ टेलीफोन का यूज करके, राइट, मोस्टली ये बहुत कॉमन सी इंफॉर्मेशन है। द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज दैट एट व्हाट टाइम आफ्टर 8 PM अ बस फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा विल बी अवेलेबल। सो उसने जो क्वेश्चन पूछा था टेलीफोन से, उसका आंसर उसने लेने के लिए एक एक्जेक्टली क्वेश्चन पूछा कि एट व्हाट टाइम इट इज़ अवेलेबल। ओके, सो उसका रिप्लाई आया सेंडर के थ्रू, उसने रिसीव किया और वो रिसीव किया उसने टेलीफोन के थ्रू। हियर द सेम थिंग, रिसीवर विल रिसीव द मैसेज कि व्हाट टाइम इज आफ्टर 8 PM द बस विल बी अवेलेबल। फॉर फिफ्थ वन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैसेज का अर्थघटन मैंने बोला था, उसका आउटपुट क्या आएगा। सो पहले एक्सप्लेनेशन उसका क्या है स्टेप्स का। द सेंडर सिलेक्ट्स प्रॉपर वर्ड्स एंड यूजेस सच अ लैंग्वेज इन द मैसेज दैट द रिसीवर कैन इंटरप्रेट इट वेरी वेल। सो सेंडर ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइडेड, यानी कि मे बी ही इज द पर्सन, इंक्वायरी ऑफिसर, हु इज द पर्सन विद द नॉलेज ऑफ द डिफरेंट बसेज, इंक्वायरी बूथ हमने देखा, तो उसके पास इंफॉर्मेशन है कि विच टाइप ऑफ द वर्ड्स ही कैन यूज एंड ही विल यूज। तो प्रॉपर वर्ड्स मस्ट बी देयर और प्रॉपर लैंग्वेज मस्ट बी देयर। वी आर लिविंग इन गुजराती, तो उसको आंसर गुजराती में देना है, तो उसको ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली गुजराती में रखनी चाहिए। तो पर्सन आस्क इन इंग्लिश एंड यू हैव टू गिव द आंसर इन इंग्लिश। अगर वो नहीं जानता तो यू कैन यूज द हिंदी और अदर लैंग्वेज, जो जानता है वो। तो सिंपल सा मैसेज उसने रिसीवर को भेजा, तो रिसीवर उसको इंटरप्रेट कर लेगा। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? When the sender sends the message that at what time after 8 PM a bus from Rajkot to Vadodara will be available, so the receiver understands that there is a query regarding a bus available for Vadodara after 8 PM. ओके, सो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम क्वेश्चन में आपको लगेगा कि राजकोट टू वडोदरा है, सो रिसीवर अंडरस्टैंड, रिसीवर को मालूम तो पड़ गया है दैट देयर इज अ क्वेरी अबाउट रिगार्डिंग अ बस अवेलेबल फॉर वडोदरा आफ्टर 8 PM। तो उसके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है कि राजकोट से बड़ोदरा का, बड़ोदरा की जो बस है उसके पास, अगर वो समझ सकता है तो रिसीवर उसका इंटरप्रेट करेगा कि सम ऑफ द क्वेरीज आर देयर कि बस अवेलेबल आफ्टर है। ये क्वेश्चन रिपीट ही होगा, उसमें कोई ये नहीं है कि क्यों बारी बारी एक का एक आता है। राज में रिप्लाई टू द मैसेज, वो रिस्पॉन्स करेगा। यहाँ हमने देखा एक्सेप्ट द रिसीव, एक्सेप्ट द मैसेज एंड देन आफ्टर इंटरप्रेट एंड रिस्पॉन्ड। So now the receiver of the message interprets the message properly and gives the reply. ये theory में हम देख चुके हैं। So he will interpret the message and give back the response. तो सुना, अब reply देने के बाद क्या होगा? The receiver of the message replies to the query. At what time after 8 PM a bus from Rajkot to Vadodara will be available and will supply information accordingly. तो उसके हिसाब से हमें बताया जाए कि कैसे हमें ये बस मिलेगी, कौन से समय पर हम यहाँ से जा सकते हैं। ओके, ये एक ही चीज़ है, उसको बारी बारी घुमा घुमा के आपके सामने रखा है, लेकिन एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन यहाँ है कि 1% दैट इज फ्रॉम दी सेंडर, दैट इज फ्रॉम सोर्स बोलते हैं, वही सोर्स जो टारगेट है उसको इन्फॉर्मेशन देता है कि एट व्हाट टाइम आफ्टर 8 PM अ बस फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा विल बी अवेलेबल। सो ये सब क्वेश्चन थे, ये सब एक्सप्लेनेशन था, स्टेप्स थे, उसके बाद उसका एग्जाम्पल हमें दिया है ये वाला। आप कोई भी दूसरी चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द कम्युनिकेशन रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन। नाउ लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट दैट इज इंटरनेट। यही कम्युनिकेशन का भी पार्ट है। हम वहाँ पर जाते हैं, व्हाट इज इंटरनेट, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो देख लेते हैं। हियर इट इज मीनिंग ऑफ इंटरनेट। सो द वर्ड इंटरनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स। जैसे हमने कम्युनिकेशन में देखा था वैसा ही यहाँ 2 वर्ड्स वैसे भी है, सेम, यानी सेम रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर सेम टाइप ऑफ दी लेटिन टाइप। यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कहाँ से वर्ड है, लेकिन ये भी 2 डिफरेंट वर्ड्स है, दैट इज इंटरकनेक्शन। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। ओके, सो दिस इंटरनेट वर्ड इज फ्रॉम इंटरकनेक्शंस एंड ऑल्सो नेटवर्क। तो नेटवर्क के बगैर इंटरनेट का कुछ काम नहीं। सो द वर्ड इंटर रिफर्स टू इंटरनल। यहाँ जो इंटरकनेक्शन है उसमें इंटर वर्ड है क्या है, रिफर्स टू इंटरनल, एंड द वर्ड नेट
जो नेटवर्क है वो नेट रिफर्स टू नेटवर्क। तो यहाँ पूरा जो वर्ड हमने इंटरनेट दिया है इसको भी हमने इंटरकनेक्शन नेटवर्क दोनों में से निकाला है। इंटर यानी कि इंटरनल, नेट यानी कि नेटवर्क। ओके, इन द वर्ड इंटरनेट। सो इंटरनेट थस इंटरनेट मीन्स इंटरनल नेटवर्क, अंदरूनी नेटवर्क, अंदरूनी उसका जो भी नेटवर्क है वो ये कहा जा सकता है, हम उसको बोल सकते हैं। सो इंटरनेट मीन्स इंटरनल नेटवर्क। सो इंटरनेट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर ऑपरेटेड सिस्टम इन द वर्ल्ड, कीप इन माइंड एंड मेक इट अंडरलाइन। इंटरनेट क्या है? इट इज द लार्जेस्ट कंप्यूटर ऑपरेटेड सिस्टम। तो कंप्यूटर ऑपरेटेड सिस्टम अभी तो बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन लार्जेस्ट कंप्यूटर ऑपरेटेड यही सिस्टम है। in it has other name, or in the other names we can say the net, right? उसको हम बोल सकते हैं, कई बार हम नेट बोलते हैं, नेट खत्म થઈ ગયું, right? We are using this type of the word, network actually datas are over, right? data खत्म થઈ ગયો, नेट खत्म ना था। So in other words we can say other names like net, information, super highway, cyberspace, etc. तो these are some common name of the internet। याद रखो, नेट, सुपर हाईवे, राइट? ये सुपर हाईवे किसका है? इंफॉर्मेशन का। सो नेट विल प्रोवाइड यू द सुपर हाईवे इंफॉर्मेशन। एंड लास्टली वी कैन से साइबर स्पेस। अब इससे सब कुछ चलता है। सो ये तीनों के तीनों नाम जो है वो आसानी से याद रहे ऐसे, नेट, साइबर स्पेस और सुपर हाईवे। तो इंफॉर्मेशन का सुपर हाईवे जो है उसे हम नेट, इंटरनेट कहते हैं। So when a group of the computers are connected with the purpose to share information and resources, it is called network। तो अब नेटवर्क किसको बोलते हैं? आज हमने देखा था, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी कि जो कंप्यूटर्स जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए सर्वर के साथ, तो हमने इन्फॉर्मेशन ली है थोड़ी बहुत, बैंकिंग सिस्टम है। तो यहाँ नेटवर्क सिस्टम उसके जैसी है कि वैन कंप्यूटर्स, ग्रुप ऑफ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, जो भी ग्रुप ऑफ द कंप्यूटर्स है वो कनेक्ट हो जाते हैं विद द पर्पस टू शेयर। वाई दे वांट टू शेयर द इंफॉर्मेशन व्हाट दे टाइप, व्हाट दे गिव इन दैट कंप्यूटर। ओके, द पर्पस इज टू शेयर द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, वॉट एवर द इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज आर अवेलेबल, इट इज कॉल्ड नेटवर्क। सो एक बार का क्वेश्चन है, नेटवर्क किसको बोलते हैं? हमको सबको मालूम है कि नेटवर्क नथी, नेटवर्क इज नॉट देयर, नेटवर्क इज मिसिंग, लेकिन उसके पास क्या हुआ है? किसी सर्वर के साथ जुड़ा हुआ है, राइट? हम जो बात करें मोबाइल फ़ोन की बात है, इंटरनेट की बात कर रहे हैं, राइट? सो यहाँ पर हम कंप्यूटर को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, ये इंटरनेट कंप्यूटर के लिए ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो दैट्स व्हाई द ग्रुप ऑफ द कंप्यूटर्स आर देयर, दे आर कनेक्टेड एंड शेयर इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज, वो नेटवर्क है। अच्छा, फॉर दिस they should be connected using hardware and software। तो when you want to use this network, when you want to use the particular information, okay, share information करनी है आपको resources का यूज़ करना है, then you have to download, right, that hardware and software। अच्छा, you have to download the software and you have to install, यानी कि you have to put into the CPU और अदर जो भी उसके हार्डवेयर चाहिए वो तो मार्केट में सब अवेलेबल है ही, आपको मालूम भी है। लेकिन जो भी आपको एप्लीकेशन रन करवानी है उसका आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, कई बार हार्डवेयर को चेंज करना पड़े तो भी करना पड़ता है। सो कनेक्टेड कैसे होते हैं? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। सो द सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग 2 और मोर कंप्यूटर्स इज कॉल्ड नेटवर्क। सो यहाँ हमने देखा कि पर्पस है हमारा वांट टू शेयर द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, तो हम नेटवर्क उसको बोलते हैं। लेकिन अदर थिंग इज दैट कि यहाँ पर एक सिस्टम है कनेक्टिंग 2 और मोर कंप्यूटर्स, 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स हम कनेक्ट करते हैं, देन इट विल बिकम नेटवर्क। जब एक ही काम पर 2 काम हो जाते हैं, सो नेटवर्क का ही ये काम होता है, यानी कि मोर देन 2 नेटवर्क्स, मोर देन 2 टाइप ऑफ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड। दिस कंप्यूटर्स मे बी इन द सेम रूम, कई बार सेम रूम में होते हैं कंप्यूटर, मे बी इन डिफरेंट ऑफिसेस और एट द रिमोट प्लेसेस। ये कहाँ पर होते हैं वी डोंट नो, राइट? कई बार बाहर से भी ये सब कुछ ऑपरेट होता है, जो मेन होता है वो जो सर्वर होता है, राइट? अब तो इंटरनेट है तो दूर दूर से ये सब कुछ बैंकिंग सिस्टम में हमने देखा है, दूर दूर से सब कुछ हैंडल हो सकता है। सो इट विल बी इन द सेम रूम, द 2 कंप्यूटर्स आर मे बी इन द डिफरेंट ऑफिसेस, मे बी इट इज एट द रिमोट प्लेसेस जहाँ कोई ना जा सके। सो द एरिया ऑफ नेटवर्क कवर्स नियर बाय कंप्यूटर्स एज वेल एज कंप्यूटर्स प्लेस्ड वर्ल्ड वाइड। So it is not compulsory that there must be a same computer or same type of the information will be provided by the same computer, but हाँ सर्वर जो है उसके पास सभी इंफॉर्मेशन रहती है। सो यू कैन से कि कंप्यूटर्स जो है वो सेम ही रूम में है तो भी अच्छा है, नहीं है बाहर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नेटवर्क क्या कवर करता है? नेटवर्क मोस्टली कवर करता है नियर बाय कंप्यूटर्स, यस, बट ऑल्सो इट विल कवर द डिफरेंट टाइप ऑफ द कंप्यूटर्स दैट इज प्लेस्ड वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जहाँ भी हो एस्टेब्लिश्ड है, यानी जहाँ पर उसको हमने इंस्टॉल किया हुआ है, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया वहाँ से भी हम ऑपरेट कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव दैट सर्वर। इंटरनेट मीन्स
द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क। तो ये बहुत घुमा फिरा के फिर से एक बार इंफॉर्मेशन दी जाती है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट के जरिए हम एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। तो दैट इज द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क। कंप्यूटर का जो भी नेटवर्क है उसे हम इंटरनेट कहते हैं। तो नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क, दैट्स ऑल। नो वन ओन्स द इंटरनेट। ये किसी की मालिकी का नहीं है, इसकी मालिक गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट भी एक्चुअली इसकी मालिक नहीं है, कि गवर्नमेंट इज ऑल्सो यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ द सोर्सेज विच इज प्रोवाइडेड बाय द वर्ल्ड। ये सब काम जो होता है राइट, वो एक फाइबर वायर के साथ होता है। करोड़ों की संख्या में ये वायर पूरे ओशन में फैले हुए हैं। एक वायर कट जाता है कोई भी रीज़न से, राइट, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो दूसरा वायर एक्टिव होता ही है वहाँ पर, राइट। ऐसे एक बंच में कई वायर्स होते हैं। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको पर्सनली समझाऊंगा जब हम मिलेंगे हमारे लेक्चर में। तो ये पूरा एक नेटवर्क है, इंटरनेट है, जो कई जालों से बना हुआ है। सो इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स नेटवर्क। नो वन ओन्स द इंटरनेट। सम ऑर्गेनाइजेशन हेल्प इन द मैनेजमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द नेटवर्क। तो इसका मालिक कोई नहीं है, लेकिन कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं दे आर हेल्पिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ द network or various activities of the network. So whenever the different activities are there, okay, whenever the different activities are there, the management, the people, the group of the people, the group of that, some of the individuals, they will provide this information. They will provide help, assistance to the different type of the network related issues. तो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ है कि ये लोग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं। Now there are 4 categories of computer network. The first one, LAN. फुल फॉर्म सबका याद रखना, LAN, LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। वो क्या करता है? एक एक मार्क का क्वेश्चन। LAN means computers at certain place are connected with one another through wire or without wire. So these computers are connected with or without wire, यानी मोस्टली कंप्यूटर लैब में ये सब होता है। Okay, so that is certain places, right? ये कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में हो, हमारी स्कूल समझ लो, राइट, कोई ऑफिस समझ लो, तो सब लैन से जुड़ा होता है। सर्टेन प्लेस आर द कनेक्टेड विथ वन अनदर वायर और विदाउट वायर। सेकंड वन है कैन यानी कैंपस एरिया नेटवर्क। तो यहाँ इसका मीन्स क्या होता है? कंप्यूटर्स एट अ कैंपस आर कनेक्टेड विथ वन अनदर, यानी एक छोटी सी स्कूल है तो ये लैन हो सकती है, लेकिन हमारे जैसे बड़ी कोई स्कूल होती है तो कई उसके यूनिट्स होते हैं, तो यहाँ कैन चलता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिट्स, राइट, सम ऑफ डिप्लोमा, डिग्रीज, कई इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़ी बड़ी ऑफिस होती है, परचेज, सेल होता है, मार्केटिंग, राइट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, तो ये सब जुड़ी होती है। सो कैन से आता है, यानी कैंपस एरिया नेटवर्क, यानी कंप्यूटर्स कैंपस के अंदर कनेक्टेड है। तीसरा आता है मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसका मतलब क्या है? मीन्स कंप्यूटर्स ऑफ अ सिटी आर कनेक्टेड विथ वन अनदर, यानी आनंद खेड़ा, आनंद नडियाद, आनंद बोरशद, आनंद पेटला, जो भी छोटी बहुत सिटी होती है, वो कई बार बड़ी सिटीज़ भी आ जाती है। सो यहाँ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कनेक्ट होता है। चौथा है WLAN। हमारे रूटीन में यानी कि आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा लैन और वैन, राइट। वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, मीन्स कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ग्लोबली विदाउट एनी फिजिकल बाउंड्रीज। यहाँ हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमारा कंप्यूटर किसके साथ जुड़ा हुआ है। इट इज़ कनेक्टेड वाइडली, इट इज़ कनेक्टेड इन द डिफरेंट लेवल, और वी कैन से वर्ल्ड वाइड इट इज़ कनेक्टेड। बहुत क्वांटिटी में ये जो कंप्यूटर्स है वो कनेक्टेड है ग्लोबली। सो वी कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। सो ये चारों के चारों मिला हो तो अलग अलग हो सकता है, ये सब इंटरनेट से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। यहाँ डिफरेंट टाइप है नेटवर्क के, उसमें इंटरनेट दिया जाता है। तो ये नेटवर्क जो है सब यही इंटरनेट है। जो ये अलग अलग टाइप है उसको हम नेटवर्क बोलते हैं। वो लैन, कैन, मैन या वैन से कनेक्टेड है। सो ये थी इंफॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी रिलेटेड टू इंटरनेट। नाउ लेट्स मूव टू दी सम ऑफ द बेसिक रिलेटेड टू दैट वैन, क्योंकि वैन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि मोस्टली सभी जगह पर हम इसका यूज़ करते हैं। So wide area network यानी WAN is divided into 2 categories. One more question MCQ. How many categories are there of the WAN? That is 2. Enterprise WAN and global WAN. The first one is enterprise, second one is global. So wide area network देख लेते हैं। So पहला है enterprise WAN. It is wide area network of computers of a big organization. ये बहुत बड़ा यूनिट है। समझ लो हमारा स्कूल, राइट, बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी कंपनी भी कोई हो सकती है, राइट। सो इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क। हमने पहले देखा कि ये सिस्टम क्या है,
right? Network of computers network, it is called internet. So it is mostly, right, a network of the network of fixed computers of various places. सो अलग अलग जगहों के जो फिक्स कंप्यूटर है यहाँ जुड़े हुए होते हैं अंडर द पर्टिकुलर WAN, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क अंडर एंटरप्राइज, यानी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग कंप्यूटर्स इसके यहाँ अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं. इट इज़ अ नेटवर्क एस्टेब्लिश फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. तो मोस्टली ये कंपनीज के ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम कर सके, इसीलिए दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड WAN. And this type of network is known as intranet. It is not internet, okay, keep in mind, it is intranet. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन जो है, वहाँ कुछ फिक्स्ड किए गए कंप्यूटर है अलग अलग जगहों पर. अभी तो लैपटॉप फिक्स कर देते हैं, लेकिन लैपटॉप होते हैं. सो वो जो फिक्स हो जाते हैं वो नेटवर्क एस्टैब्लिश होता है फॉर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ये जो टाइप आता है जो नेटवर्क का, उसे हम कहते हैं इंट्रानेट. इट इज़ नॉट इंटरनेट, इंट्रानेट. सी द एग्जाम्पल, इंडियन रेलवेज कनेक्ट ऑल इट्स ऑफिस कंप्यूटर्स थ्रू दिस टाइप ऑफ नेटवर्क. तो पूरे गुजरात में आप पश्चिम रेलवे देखते हो तो सब कनेक्टेड है. तो गुजरात आता है तो महाराष्ट्र भी पश्चिम रेलवे में आता है. सो ये तो कनेक्टेड है. तो ऐसा थोड़ी ना गुजरात महाराष्ट्र कनेक्टेड है, हम तो पूरे इंडिया से कनेक्टेड है. तो अब आते हैं हम आगे, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, जो भी हो, पूरी इंडियन रेलवे इंट्रानेट से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ WAN. ये भी एक मार्क का क्वेश्चन है कि विच इज द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एंटरप्राइज WAN, और कौन सी सर्विस हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं इससे. तो हम जब टिकट लेने जाते हैं तो आपको सीधी तरीके से बता देते हैं. जब आप करंट टिकट लेते हैं तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, लेकिन हमारे पास जब आप वो रिजर्वेशन करवाने जाते हो, सॉरी फॉर रिचार्ज, लेकिन रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन होती है पैक થઈ ગયું છે, ओके, नो वैकेंसीज, राइट. आपको जाना है अगर समझ लो कि पंजाब में जाना है लुधियाना, तो पश्चिम एक्सप्रेस जाता है. आपको मालूम है बड़ौदा से निकलता है, आनंद नहीं आता है वो, तो बड़ौदा से आपको जाना पड़ता है. तो आप देख सकते हो आनंद से भी कि कौन से टाइम पर उस पर जगह है. तो शाम को 6-7 के बीच आती आई थी. तो आपको जाना होता है क्योंकि आज नहीं है, कल नहीं है, परसों भी नहीं है. रिजर्वेशन नहीं मिलता, सिर्फ डे आफ्टर टुमारो भी नहीं है, आपको 4 दिन के बाद का इंटर मिलता है. तो वो आपको बता रहा है इंट्रानेट से कि हाँ वैकेंसी, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विथ ईच अदर. वो कंप्यूटर जुड़े हुए, भले अलग अलग बेसिस पर है, लेकिन वो सब जुड़े हुए, इसीलिए आपको मालूम पड़ता है. नेक्स्ट वन है ग्लोबल वान. दिस इज अ लार्ज नेटवर्क एंड दिस नेटवर्क हैज़ नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज. उसकी कोई जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है. हमने आगे भी देखा, इन्फॉर्मेशन भी आपके पास है कि जब जब आप कोई भी काम करते हो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती है, दैट इज वी कैन से इंटरनेट. तो सुपर हाईवे अब तो हो गया है, तो इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है. सो इट इज़ स्प्रेड इन वेरियस कंट्रीज एंड कंटिनेंट्स. अलग अलग देशों में, अलग अलग खंडों में ये पहुंचा हुआ है. एंड इज़ वन कलेक्टिव नेटवर्क ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन. सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, कंपनी का नहीं है. वैन क्या है, एंटरप्राइज वैन, वो एक पर्टिकुलर कंपनी का है, ऑर्गेनाइजेशन का है. वहाँ फिक्स कंप्यूटर अलग अलग जुड़े हुए हैं. इंडियन रेलवेज की बात करें, LIC की बात करें, लेकिन LIC भी ये फैसिलिटी नहीं देती है. पोस्ट की बात करें, ऐसे कई यूनिट्स हैं, सब थोड़े थोड़े बहुत यूज़ करते हैं. बैंकिंग सिस्टम है, लेकिन जब ग्लोबल आता है तो दे आर कनेक्टेड ग्लोबली. जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जीरो, यानी कि कनेक्टेड है, उसमें कोई आपको जियोग्राफिकल बाउंड्रीज आपको हैरान नहीं करेगी. अगर मुझे यहाँ से नेपाल जाना है तो मुझे पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा नेपाल में भी, और मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि मैं कहाँ जाना हूँ. नेपाली यहाँ आते तो उनको भी यही सेम सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, फॉलो करनी पड़ती है. और कई बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से उनको अगर आप फॉलो नहीं करते तो यू आर नॉट एबल टू एंटर इन दैट, बट एंटर इन दैट कंट्री. बट हियर इंटरनेट हैज़ नो बाउंड्रीज, वो बाउंड्री लेस है. यानी यहाँ पर जो जियोग्राफिकल बाउंड्री से खुला है कॉन्टिनेंट्स कंट्रीज के हिसाब से. It is one collected network for various organization. It is also called, or it is called WWW. ये फुल फॉर्म के लिए याद रखना, वर्ल्ड वाइड वेब. जो पूरी दुनिया का जाला है, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में फैला हुआ है ये जाला, वर्ल्ड वाइड वेब, इसीलिए इसको बोला जाता है. हम यूज़ करते हैं WWW डॉट. आपको मालूम है कोई भी नाम लिखो, अगर उसकी वेबसाइट होती तो आ जाएगी. अगर नहीं आती है तो ऑफिशियल वेबसाइट आप उसके वहीं एंट्री कर सकते हो. नाउडेज इंटरनेट सर्विसेज. अब इंटरनेट आपको मालूम पड़ गया हो कि जब भी नेटवर्क जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, वहाँ पर ये अलग अलग प्लेसेस पर चलता है, उसको इंटरनेट बोलते हैं. इसलिए क्यों कि यहाँ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है. सो नाउडेज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैव एस्टैब्लिश देयर ओन सेपरेट कम्युनिकेशन सिस्टम बाय रिमूविंग द नेसेसिटी ऑफ टेलीफोन. तो अभी तक तो सब कुछ टेलीफोन से होता था, लेकिन उसकी ज़रूरत अब नहीं है. पहले मेरे घर पे ही समझ लो कि BSNL का इंटरनेट चलता था. कौन सा वाला, जो पहले वो लैंडलाइन फ़ोन के साथ वो जोड़ के देते थे. तो सिंपल है ना कि वो जो इंटरनेट है उस पहले उसके वायर के थ्रू चलता था.
ओके, सो नेसेसिटी टेलीफोन की हमने कम कर दी। मैनी फेमस ऑर्गेनाइजेशंस हैव कनेक्टेड देयर कंप्यूटर्स एंड क्रिएटेड अ नेटवर्क। तो कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे फेमस ऑर्गेनाइजेशंस, कोई एक पर्टिकुलर ले लो आप, राइट, कोई बड़ा वाला, तो वो कनेक्टेड है कंप्यूटर्स के साथ, नेटवर्क क्रिएट करते हैं। सो थस इंटरनेट मीन्स अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ये एक फाइनलाइज मीनिंग आप लिख सकते हो। इंटरनेट मीन्स अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स विच एस्टैब्लिशेस कम्युनिकेशन बाय अ सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीफोन और केबल और विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। तो इसका यूज जो आप सैटेलाइज भी करते, मैंने बोला था एटीएम में सैटेलाइज यूज होता है। सो वेन एवर यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन विदाउट यूजिंग द सैटेलाइट और विद द हेल्प ऑफ द सैटेलाइट, इंटरनेट कब शुरू होता है, तो ये इसका एक बेसिक मीनिंग हो सकता है। तो ये अंडरलाइन कर लेना, यही लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल सा भी आप लिख सकते हो दैट इट इज़ कॉल्ड नेटवर्क है। उसके बाद जो भी इंटरनेट है वो नेटवर्क्स जो है उसका कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, लेकिन ये थोड़ी बहुत प्रॉपर है। सो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स विच एस्टैब्लिशेस कम्युनिकेशन। तो ये एक नेटवर्क है जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करता है, एक वन साइड टू टू साइड, यानी टू वे कम्युनिकेशन उसको स्टार्ट करना है बाय सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइजर मीन्स फ्रॉम वन पर्टिकुलर प्लेस इट इज ऑर्गेनाइज। दिल्ली से ही सब कुछ काम होता है, बैंगलोर से ही सब कुछ काम होता है, दैट इज सेंट्रलाइजेशन। और सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, एक ही जन के हाथ में सब सत्ता होती है, विथ दैट इज सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीफोन। तो टेलीफोन की हेल्प लो ना लो, केबल की हेल्प लो ना लो, और विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। तो आपके पास टेलीफोन है नहीं है, केबल है, केबल भी नहीं है, फाइबर नहीं है, तो फिर आप सैटेलाइट का यूज़ करो ना, सिंपल। सो विथ और विदाउट द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, सॉरी हेल्प ऑफ टेलीफोन, विथ और विदाउट हेल्प ऑफ टेलीफोन, केबल और विथ द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। So this is the information. Now last point, text, picture, AV, that is audiovisual, only visual, only audio, and numeric information can be exchanged with the help of internet. तो सब कुछ अब तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं ना, हमने इमेजेस भी एक्सचेंज किए, करते भी, डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करते, कई एवरी टाइप ऑफ द थिंग्स। तो मेक इट अंडरलाइन दिस पॉइंट कि कौन कौन सी चीज़ हम यहाँ पे कोई ना कोई तरीके से इंटरनेट से हम पास कर सकते हैं, यानी एक्सचेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन जो हम पास कर सकते हैं। उसके पीछे जो पॉइंट है कि 3 टाइप्स ऑफ द फंक्शंस कैन बी परफॉर्म थ्रू इंटरनेट, ये 3 फंक्शंस इंटरनेट करता है, उसका हम इंफॉर्मेशन नेक्स्ट सेशन में देंगे। फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।